and welcome back to the weekly webinar of Rajlakshmi Solutions. Well, before entering into today's webinar and topic, let's move ahead with the introduction. So before moving ahead to the introduction, can anyone please confirm me, am I audible? Yes, ma'am, your voice is audible. Thank you. Thank you so much for your confirmation, Krishna. All right. So moving ahead towards the topic. So basically, what we are, let's go from the introduction. So like we are into software sales and services, and we are part of customization as well. So what are the different software we deal with? We deal with multiple softwares like Tally Prime and accounting software, and we are part of SAP Business One, a key for every business solution, and we are part of Bitrix CRM, a customer relationship management, which deals with multiple like project handling or task leads and like work from home setups, report management, etc. And we are part of Skill India, a government project which is specifically concerned for the education and employment of students. And apart from this, in this pandemic, we rose up with multiple services as well. That is like HR services and digital marketing services. And we are part of Tally on Cloud as well. Stay anywhere and everywhere. Enjoy your work without any kind of distraction and interruption with Tally on Cloud. So this is the softwares and the services we deal with. And apart from that, yes, we are part of customization and advisory services. Customization is nothing but according to your working style, structure, process. We try to remodule the software and update you to just maintain the same flexibility and comfortability of your work. And apart from that, yes, as I said, advisory is nothing but whenever the organization is distracted from work, we give an entry, and at that moment we try to analyze what is the right software, what is the right scenario or the system or the process, and we help you to streamline your business. Well, this is all about the introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Well, moving ahead towards today's topic. Today's topic is all about e-invoice, e-way bill generation, and cancellation process in Tally Prime. This is one of the most important, topic, and it was selected on demand of the customers. So basically, before moving ahead towards this particular topic, let me introduce the presenter and the demo presenter. So, Mr. Krishna, are you here? Yes, ma'am. Good evening. Hi. Hi, Krishna. Good evening. Thanks for joining. And we have Ms. Tejashri with us. So, Ms. Tejashri, are you here? Yes, ma'am. Good evening. Hi, Tejashri. Thank you so much for joining. And we can see here there is a resource person as well in the template. But as of now, the resource person is not available due to some emergency. So today's topic will be handled by Ms. Tejashri and Mr. Krishna. So moving ahead towards the topic, there are few instructions again onto this particular webinar. That is like, if you have any concerns or any questions, request you to give the space to the speakers. By the end of the session, you can update your comments or you can raise up your hands. We are here to support you. And apart from that, if there is any person who joined in between, request you to please you can visit our visit this particular session video in YouTube after couple of days. So after a couple of days, we will be updating today's session in the YouTube channel. So that's it from my end. So moving ahead to Mr. Krishna and Ms. Tejashri, request you to proceed ahead with your presentation and the live demo. Okay, thank you, ma'am. Hello, good evening, everyone. Myself Tejashri. I am representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Just a minute, I'll share my screen. So, today we are going to discuss about the process of generation and the cancellation of e-way bill.
As we know, from the 1st of April, Government of India has been introduced e-invoicing for the business whose turnover is 20 crore above. So let's see what is the e-invoicing and e-way bill and its criteria for generation and cancellation. Moving on to the first slide, that is e-way bill. E-way bill is a mechanism to ensure that goods being transported comply with the GST law and is a tool to track movement of goods and check evasion. ई-वे बिल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको इंश्योर करता है कि आपके गुड्स जो भी ट्रांसपोर्ट हुआ है वो एक रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन से ट्रांसपोर्ट हुआ है और साथ ही साथ आपको ट्रैक करने में भी हेल्प करता है. विदाउट एन ई-वे बिल, a GST registered person cannot transport goods in a vehicle whose value exceeds rupees 50,000 that is generated on the e-वे बिल पोर्टल. अगर आपका बिल 50,000 के अबव होगा तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मस्ट है. अगर आपने ई-वे बिल के साइट पे जनरेट नहीं किया है तो आपको आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का कोई परमिट नहीं मिलता है. ई-वे बिल कैन आल्सो जनरेटेड एंड कैंसल थ्रू SMS, Android app and by site-to-site integration through API. When an e-वे bill is generated, the unique e-वे bill number is allocated and available to the supplier, recipient and transporter. Registered person and unregistered person, also a transporter, can generate e-वे bill. जैसे कि आप ई-वे बिल जनरेट करते हो, एक यूनिक ई-वे बिल नंबर आपको एलोकेट किया जाता है और वो सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर को अवेलेबल किया जाता है. रजिस्टर्ड पर्सन जैसे कि जीएसटी नंबर जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और ट्रांसपोर्टर, ये तीनों भी लोग ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं. Moving on to the next slide, e-invoicing. E-invoicing is a system in which B2B invoices are authenticated electronically by GSTN for the further use of common GST portal. E-invoicing एक ऐसा सिस्टम है जो आपको B2B इन्वॉइसेस के लिए ऑथेंटिकेट किया जाता है GST के पोर्टल पे और for the use of common GST portal. Under the electronic invoicing system, an identification number will be issued against every invoice by the invoice registration portal to be managed by the GST network. जब भी आप आपका इनवॉइस जनरेट करेंगे, आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाएगा जो पर्टिकुलर इनवॉइसिंग के लिए रहेगा. If you are a business with an annual turnover of 20 crore and above, then you are eligible for invoicing. E-invoicing helps you with the data reconciliation and accuracy during the manual data entry. जैसे कि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ के अबाव होगा तो आप एलिजिबल है फॉर इनवॉइसिंग के लिए. एंड ई-इनवॉइसिंग आपको हेल्प करता है मैनुअल डेटा एंट्री में कुछ मिस्टेक्स होने से और एक्यूरेसी रखने में. देन क्राइटेरिया फॉर ई-वे बिल. फॉर द जनरेशन, ई-वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50,000 इन अ वैल्यू टू और फॉर्म रजिस्टर्ड पर्सन. जैसे कि जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ही ई-वे बिल जनरेट कर सकता है और उनका इनवॉइस 50,000 के अबव होना चाहिए. फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इन टैली प्राइम, you have to use API user and password. Also, a document required for generation of e-वे bill is invoice, bill of supply, delivery challan as required. ई-वे बिल आप टैली प्राइम से अगर जनरेट कर रहे होंगे तो आपको API यूजर ID और पासवर्ड मस्ट है. मैंडेटरी field for e-वे bill generation, that is recipient GSTN, place of delivery, e-invoice or challan number, date, HSN code, goods value and the transport document number or reason for transportation. For the cancellation, the time limit for the e-वे bill cancellation is within 24 hours of generating. Once cancelled, it is illegal to use such a e-वे bill. अगर आप ई-वे बिल जनरेट कर रहे हो और अगर आपको कैंसिल करना है तो 24 आवर्स के पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा. और अगर आपने कैंसिल कर दिया है तो वो ई-वे बिल आप किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते हो. इट इज इलीगल. इफ द सेम इज नॉट कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स, देन द सिस्टम विल नॉट अलाउ द कैंसिलेशन बाय कंसाइनर. अगर आपसे ई-वे बिल 24 आवर्स के पहले कैंसिल नहीं हुआ है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा पोर्टल से कि आपको वो कैंसिल करना है. देन क्राइटेरिया फॉर ई-इनवॉइसिंग.
For invoicing generation in Tally Prime, you have to use API, user ID and password. जैसे कि हमने पिछले बार देखा कि ईबे बिल के लिए भी आपको API, यूजर आईडी और पासवर्ड लगेगा, वैसे ही आपको इनवॉइसिंग जनरेशन के लिए API, यूजर और पासवर्ड लगेगा. The 5 mandatory sections are basic details, supplier information, recipient information, invoice item details और document total. ये सब mandatory fields है for invoicing generation. For cancellation, once the IRN is generated for invoice, the invoice cannot be modified, amended or deleted. जैसे कि अगर आप कोई इनवॉइसिंग जनरेट करते हो तो उसका IRN नंबर जनरेट होता है, तो आफ्टर IRN जनरेशन आप कौन सा भी इनवॉइस मॉडिफाई, अमेंड और डिलीट नहीं कर सकते. एंड इनवॉइस कैनॉट बी पार्शियली कैंसल, इट हैज टू बी कैंसल फुल्ली. इनवॉइस आप आधा कैंसिल नहीं कर सकते, इसको पूरी तरीके से आपको कैंसिल करना पड़ेगा. Once cancelled, it will need to be reported on the IRN within 24 hours. जैसे कि आपने इनवॉइसिंग कैंसिल कर दिया है तो आपको पोर्टल में 24 आवर्स के पहले उसको कैंसिल रिपोर्ट करना पड़ेगा. Cancellation done after 24 hours cannot be done on the IRN and needs to be manually cancelled on the GST portal in the GSTR1 return before the same is filled. अगर आपका कैंसिलेशन 24 आवर्स के पहले नहीं होता है तो आपको GSTR के पोर्टल पे जाके मैन्युअली कैंसिल करना पड़ता है और GSTR1 में दूसरा इनवॉइस बनने से पहले आपको कैंसिल करना पड़ता है. So this was all about for the process. I will end from my side. I will request to Mr. Krishna for the live demonstration. Thank you. Thanks, Tejasri. Very nice presentation. Thank you, sir. 1 minute, I will share my screen. Screen is visible, Tejasri? Yes, sir. Okay. Hello everyone. Thanks, Tejasri. Very nice presentation. Hello everyone. Welcome to Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Before going to start the practical session, I want to introduce myself. My name is Krishna Rane from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिन्होंने भी अभी तक ERP 9 से प्राइम में अपडेट नहीं किया है, जो भी लेटेस्ट वर्जन अपना अभी टैली प्राइम चल रहा है 2.1, तो उनको ये ई इनवॉइसिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले हमको टैली प्राइम में 2.1 रिलीज अपडेट करना होगा रिलेटेड ई इनवॉइसिंग. जैसे एडिट लॉग का भी फीचर्स हमने दिखाया था लास्ट वेबिनार सेशन में. लास्ट सैटरडे जो वेबिनार हुआ था उसमें हमने जो भी है एडिट लॉग का जो नया फीचर्स आया 2.1 में, वो यूट्यूब पे, फेसबुक के यहाँ पे सब लिंक्स दिया है. जिन्होंने अभी तक चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया राजलक्ष्मी वर्ल्ड, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और 2.1 का जो भी है बेनिफिट्स यहाँ पे ले लो. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हम सबसे जो अभी तेजस्वी ने बताया कि API रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हमको जाना होगा API रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे. e-invoice1.gst.gov ये अपना साइट है. तो पहले सबसे आपको जाना होगा गवर्नमेंट साइट पे, जैसे मैं यहाँ पे लिंक दिया है, कॉलम के एयरलाइन से. तो e-invoicing1.gst.gov.in ये साइट पे आपको पहले जाना है. नेक्स्ट में यहाँ पे जैसे जाता हूँ तो यहाँ पे जो भी है आपका लॉगिन आईडी, यूजर यहाँ पे आपको कंपलसरी डालना होगा. जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिनको अभी लास्ट ईयर में जो भी इनवॉइसिंग था उसका लिमिट था 50 CR, तो जिनका 50 CR लिमिट था उन्होंने लास्ट ईयर से टैली इनवॉइसिंग प्राइम में यूज करना स्टार्ट किया. तो जिन्होंने अभी तक उसमें थोड़ा चेंजेस किया गवर्नमेंट ने, जिनका टर्नओवर जब भी 20 CR था तो उनको 1 अप्रैल से 2022 से उनको स्टार्ट किया 2022 से. तो यहाँ पे इन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिनका अभी तक पेंडिंग है, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आप जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ई इनवॉइस इनेबलमेंट. तो जैसे आप ई इनवॉइसिंग इनेबलमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको GST नंबर पूछेगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे उसका OTP जाएगा. उसके बाद जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे आपका टर्नओवर कितना था, कितने साल में आपका 20 CR हुआ, तो वो आपको कंपलसरी वहाँ पे डालना है, डिफाइन करना है. नेक्स्ट, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया इनवॉइसिंग का, ये इसी तरह से मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया.
जैसे मैंने गवर्नमेंट साइट पे लॉगिन किया इनवॉइसिंग के, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे MIS रिपोर्ट है, इनवॉइसिंग है, यूजर मैनेजमेंट है, API रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है API रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप API रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे क्रिएट API यूजर, तो यहाँ पे API यूजर आपको क्रिएट करना है, तो वो यहाँ से क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं जैसे API यूजर पे क्रिएट किया, वहां पे आपको एक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो OTP वेरीफाई होने के बाद ये आपका GSP जो भी है, API यूजर GSP यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए अथॉरिटी मिल जाएगी। तो सिलेक्ट यूर GSP, सिलेक्ट में आपको GSP में डालना है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। यूजर नेम जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पासवर्ड सेम, यहाँ पे जो पासवर्ड आपका सेट करना है, कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पे दिए हैं, जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक पासवर्ड डालना होगा तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। री इंटर पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको री इंटर करना है। ये पासवर्ड रजिस्ट्रेशन होने के बाद, सबमिट होने के बाद वहाँ पे आपको टैली में इसी तरह से जब हम सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, यहाँ पे इनवॉइस लॉगिन का आपको GST नंबर डालना है, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप यूजर नेम डाल रहे हो वो आपको API_ कैप्स में डालना है, उसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे टैली में डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप टैली में प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी ये तो कुछ मैंने चीजें लाइव दिखाई यहाँ पे। टैली में हम देखते हैं किस तरीके से अपना इनवॉइसिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है। और तेजस स्क्रीन इज विजिबल? यस सर, अभी हो रहा है। ओके ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की है। जैसे सबसे पहले तेजस्वी ने बताया कि API यूजर हम यहाँ पे पहले बनाना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने पहले देखा कि इनवॉइसिंग के साइट पे जाके हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमको API रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। जो भी है OTP आपको मोबाइल पे जाएगा, जो भी रजिस्टर मोबाइल है साइट पे आपका OTP वहाँ पे वेरीफाई होने के बाद आपका API ID जनरेशन होगा। जो भी यूजर ने पासवर्ड अपना API ID का यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी सेकंड स्टेप अपना है जो टैली में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो F11 में जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी क्रिएट की है, ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की है। सबसे पहले हमको जाना होगा, यहाँ पे मैं फिलहाल तो गेटवे ऑफ टैली पे हूँ। ERP9 और प्राइम में देख सकते हो आप, कुछ तो डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। अकाउंट्स इनको, इन्वेंटरी इनको यहाँ पे कुछ निकाल दिए गए। जो भी ड्रिल डाउन प्रोसेस है बहुत ही यहाँ पे कम किया है। डायरेक्टली आप अल्टर में जाके देखेंगे तो जो भी है अल्टर्स के ऑप्शन, जैसे ग्रुप लेवल है, लेजर लेवल है, वाउचर लेवल से, करेंसी के है, कोई ग्रुप है, यहाँ पे जो भी नई दिखाई दे रहा है, शो मोर पे आप जैसे क्लिक करेंगे और भी फीचर्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल देखते हैं इनवॉइसिंग रिगार्डिंग जो भी सेशन आपने हुए थे। आप लास्ट सैटरडे, जो भी सैटरडे टू सैटरडे जो भी है होते सेशंस, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल बताता हूँ इनवॉइसिंग रिगार्डिंग और ई-वे बिल रिगार्डिंग अपना टॉपिक चल रहा है, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट की है ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो F11 में जाके सबसे पहले मुझे ऑन करना है इनवॉइसिंग फीचर्स। यहाँ पे मैं जैसे यस करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मैंने पहले से मेरा जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है। स्टेट मेरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी है आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन जो भी है मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्टेट मेरा डाल दिया, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर में डाल दिया, एक्सेसरी ऑफ अदर टेरिटरी, आप अदर टेरिटरी अदर सेक्टर्स के हो तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी यस कर सकते हो। GST एप्लीकेबल फ्रॉम यहाँ पे जुलाई से भी स्टार्ट करते हो, या कंपनी का स्टार्ट डेट भी डाल सकते हो। GST नंबर आपका यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल फीचर्स में आपको, समझो आपको कंपनी को एक ही टैक्स रेट है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। मल्टीपल टैक्स रेट है तो यहाँ पे यस नहीं करने का, जो भी सेटिंग है एज इट इज नो रखने का। इनवॉइस फीचर्स पे हम आते हैं। ई-वे बिल एप्लीकेबल, ई-वे बिल आपको इनवॉइसिंग के साथ निकालना है यहाँ से टैली से, तो यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी यहाँ पे डालना है। सभी हम जो मैंने अभी जो सेटिंग किया है, मुझे इनवॉइसिंग के साथ ई-वे बिल चाहिए
तो मैंने ईवी बिल एप्लीकेबल यहाँ पे यस किया। एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे देख सकते हो 1 फरवरी 18 से हमको पहले ईवी बिल कंपलसरी बनाना पड़ता था, लेकिन अभी जिनका टर्नओवर 20 CR से उनको भी कंपलसरी ईवी बिल इनवॉइसिंग के साथ देना जरूरी है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट में इनवॉइस वैल्यू जी अभी फिलहाल तो यहाँ पे जो फिलहाल इनवॉइसिंग का जो वैल्यू है 50,000 है, आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ से आपको लगता है कि 1 लाख के ऊपर मेरा ईवी बिल होना जनरेट चाहिए, तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंजेस कर सकते हो। डिफॉल्ट टैली ने यहाँ पे 50,000 दिया है। एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्टेड यस करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे जैसे मैं आपको बोला चेंजेस कर सकते हो। गुड शिपमेंट फ्रॉम प्राइमरी रखेंगे। प्रिंट ईवी बिल विथ ई इनवॉइसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपको ईवी बिल के साथ ई इनवॉइसिंग जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन यस रखेंगे। इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फ्रॉम, अभी जिनका टर्नओवर 50 CR था उनका डेट यहाँ पे रहेगा 1 जनवरी 2021, और जिनको अभी 20 CR जिनका है, जिनको अभी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुआ है, तो यहाँ पे वो 1 अप्रैल का डेट डालना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिल फ्रॉम पेस, आप कहाँ से बिल जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो लोकेशन आपका मुंबई का रहेगा, विद इन महाराष्ट्र रहेगा तो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा। डिफॉल्ट पीरियड्स फॉर द ई इनवॉइसिंग, तो जो भी इनवॉइसिंग का पीरियड है यहाँ पे 3 दिन ही रखेंगे, जैसे गवर्नमेंट में बोला है 3 दिन के आप अंदर ई इनवॉइसिंग कैंसिल कर सकते हो। सेंड ईवी बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइसिंग, आपको ई इनवॉइसिंग के साथ ईवी बिल वहां पे जनरेट होना चाहिए, तो हाँ यस चाहिए, यस करेंगे। कंट्रोल ए करके शॉर्टकट से इसको सेव करेंगे। अभी हम आते हैं एंट्री लेवल पे, कुछ लेजर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक पार्टी में यहाँ पे लेता हूँ विद इन IGST वाला, श्री साई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ पे ईवी बिल के आपको लगता है ईवी बिल हमारा साथ ही साथ निकलना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपका पिन कोड, स्टेट, पार्टी का, कंट्री, यहाँ पे सब प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे अंडर इसको सन्डे डेटर्स में लिया, मेंटेन बिल बाय बिल, आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे शो होने चाहिए टैली में, तो ये ऑप्शन आप यस कर सकते हो। कुछ क्रेडिट्स पीरियड, लास्ट टाइम भी अपना आउटस्टैंडिंग मॉडल के ऊपर ये सेशन हुआ था, तो आप देख सकते हो बिल बाय बिल का ऑप्शन यहाँ पे क्यों यस करना जरूरी है। तो जो भी लास्ट सेशन है आप एक बार देख लीजिए, उसको आपको थोड़ा सा नॉलेज या आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट, कंट्री, यहाँ पे पिन कोड मैंने प्रॉपर डिफाइन किया है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेना है, GST। जो भी है पार्टीज आप क्रिएट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट, उनका कंट्री, पिन कोड, यहाँ पे ईवी बिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और GST नंबर ई इनवॉइसिंग के लिए। यहाँ पे कुछ भी आपका मिस्टेक्स रहेगा तो ई इनवॉइसिंग या ईवी बिल आपका नहीं जनरेट होने वाला है। कंट्रोल ए किया, यहाँ पे मिस्टेक चांसेस होने बहुत कम है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एंट्री किया, डिस्प्ले अकाउंट, सेल्स में जाके मैं चेक करता हूँ, कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, ऑलरेडी मैंने ई इनवॉइसिंग बना चुका हूँ, वो आपको कुछ शो करता हूँ। यहाँ पे श्री साई प्राइवेट लिमिटेड के आरसीजे में जो अभी मैंने लेजर आपको बताया, वो वही लेजर का मैंने एंट्री किया है। कुछ स्टॉक आइटम लेवल पे भी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आपको मल्टीपल टैक्सेस है कंपनी को, तो यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं यस करेंगे। स्टॉक आइटम लेवल पे जो भी है हम टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक मैं आपको सामने एक स्टॉक आइटम है, वो इसको अल्टर कर देता हूँ। इसको मैंने GST एप्लीकेबल किया था, यस किया था। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, HSN कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। यहाँ पे HSN कोड भी आपका गलत रहेगा तो भी ई इनवॉइसिंग नहीं बनने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक आइटम का रेट, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स यहाँ पे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल ए से मैंने सेव किया, जो भी सेटिंग किया है उसको यस किया। ये मेरा टैक्स, मुझे लगता है मेरा कुछ टैक्स रेट गलत कैलकुलेट हुआ, तो यहाँ पे मैं उसको सीधा वेरीफाई कर सकता हूँ रिलेटेड से रिपोर्ट्स में जाके, GST टैक्स एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Alt F1 में जैसे करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है मेरा 18% से टैक्स रेट कैलकुलेशन हुआ है, और ये उसका अमाउंट है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स रेट कैलकुलेशन का मिस्टेक होना है, तो यहाँ पे हमको हो भी गया, गलती से किसी ने यहाँ पे महाराष्ट्र भी डाल दिया, IGST रहेगा, और यहाँ पे CGST HGST लगा दिया, तो अपना कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं पकड़ने देगा, आपका जो भी है फील्ड वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, या आपका ई इनवॉइसिंग नहीं क्रिएट होगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल विथ ई इनवॉइसिंग डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन F12 में कॉन्फ़िगरेशन में हमें दिए हैं। टैक्स डिटेल्स में आप देख सकते हो जो भी है इंक्लूसिव करना है स्टॉक आइटम को, तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हो। जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला कि सेंड ई इनवॉइसिंग डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, आपको इनवॉइसिंग तुरंत बिल बनाते समय ही निकालना है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइसिंग, F11 में भी ये फीचर दिया था, F12 में भी ये ऑप्शन दिए है। मतलब आपको समझो किसी को अभी ई इनवॉइसिंग के साथ ई वे बिल देना है, तो हम दोनों ऑप्शन यस रखेंगे। आपको नेक्स्ट इनवॉइस खाली ई इनवॉइसिंग आपको बनाना है, तो ये ऑप्शन हम नो कर सकते हैं। ई वे बिल का ऑप्शन यहाँ पे हम नो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, मैंने जो इनवॉइसिंग क्रिएट किए, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स मैंने यस किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ई वे बिल्स का एक फॉर्म मेरे सामने यहाँ पे ओपन हुआ। ई वे बिल नंबर यहाँ पे आपको, जब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है उसके लिए वो नंबर उसने कैच किया है ऑलरेडी। डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से मेरा इनवॉइसिंग जनरेट हो रहा है, मुंबई से, तो यहाँ पे मैं मुंबई डाल दूंगा। शिप टू मेरा कहाँ पे गुड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मैंने दोनों स्टेट डाल दिए हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, डिस्टेंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर नेम्स जो भी है उसका लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे एपीएस लॉजिस्टिक मेरा एक ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर आईडी, अभी कभी कुछ चीज़ों में ऐसा रहता है कि ट्रांसपोर्टर आईडी अपने पास रहता है, कभी कभी अनरजिस्टर्ड रहता है ट्रांसपोर्टर, तो यहाँ पे आप उसका जीएसटी नंबर भी डालते हैं तो वो भी चल जाता है। पार्ट बी डिटेल्स में आप देख सकते हो मोड्स, कौन से आप मोड्स में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जैसे रोड रहेगा, रेल रहेगा, एयर रहेगा, तो यहाँ पे मेरा अभी रोड ट्रांसपोर्ट है। जी गाड़ी नंबर डालना है, व्हीकल नंबर यहाँ पे आपको कंपलसरी है। व्हीकल टाइप में आपको जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रॉपर। अभी मैंने इसको फिर से आप देख सकते हो, बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस, यहाँ पे फिर से डालना जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRN नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग मेरा ऑलरेडी बन चुका है, इसके लिए वो ऑलरेडी डिफाइन होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर करता हूँ, अल्ट भी करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज जैसे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे ई वे बिल नंबर मेरा ऑलरेडी आ चुका है, और मेरा ये IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट विथ QR कोड मेरा यहाँ पे इनवॉइसिंग आप देख सकते हो जनरेट हो चुका है। एज इट इज पार्ट जो भी है टैक्स कैलकुलेशन का अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे ई वे बिल भी मेरा साथ साथ बन चुका है। नेक्स्ट और भी कुछ मेरे इनवॉइसिंग है, ये मेरा था IGST का, ये भी मेरा सेम IGST का है, ये भी विथ QR कोड के साथ जनरेट हो चुका है। विद इन महाराष्ट्र एक पार्टी है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा था। विद इन महाराष्ट्र, जैसे मैंने आपको बोला CGST या GST, कुछ मेरे टैक्स मिसमैच हो जाते तो भी मेरा इनवॉइसिंग नहीं बनता। जैसे मैं अल्ट पे करूंगा, आप देख सकते हो ऑलरेडी इसका इनवॉइसिंग में बना चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था मुझे यहाँ पे ई वे बिल नहीं चाहिए था, ये पार्टी मेरे पास में ही है, तो मैं इसका ई वे बिल नहीं जनरेट करना चाहता था, तो मैंने वहाँ पे ऑप्शन नो रखा, और यहाँ पे मुझे खाली इनवॉइसिंग का ही मेरा ऑन द स्पॉट क्रिएट हो गया। तो ये हो गया मेरा इनवॉइसिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा तो ये सेल्स इनवॉइस तो बन चुके हैं, लेकिन कुछ मुझे एरर्स आते हैं, कुछ मुझे HSN कोड के एरर आता है, कुछ भी टाइप का एरर रहेगा, तो मुझे वो कहाँ पे देखना है। तो आप एक्सचेंज बटन यहाँ पे दिया है ऊपर, एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, सेंड फॉर इनवॉइसिंग, यहाँ पे इनवॉइसिंग रिपोर्ट। तो जो भी अपने एंट्री इनवॉइसिंग में हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे पीरियड चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन फॉर इनवॉइसिंग नॉट प्रोवाइडेड, जो भी आपका इनवॉइसिंग नहीं बना है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। एड्रेस यहाँ पे मैंने बिल टू का है, वो मेरा यहाँ पे फिर से डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। ट्रांसपोर्टर आईडी मेरा शायद यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड किया है, मतलब दिया नहीं मैंने। मोड्स यहाँ पे आपको जो भी है डालना है, तो यहाँ से जो भी एंट्रीज है वो आपको पहले रेक्टिफाई करने पड़ेंगी, क्लियर करने पड़ेंगी, तो ही जाके आपका ई वे बिल ऑन द स्पॉट ई वे इनवॉइसिंग के साथ बन जाएगा। ये हो गया मेरा एक एंट्री का।
यहाँ पे कुछ मेरे मिसमैच में भी है इंफॉर्मेशन, आयरन जनरेटेड, कुछ इनवॉइस मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो जो 2 इनवॉइस है मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो जैसे ई इनवॉइसिंग में आप ईबे बिल का हो गया, इनवॉइसिंग का हो गया, कैंसिलेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने स्पेस बार से इसको सिलेक्ट किया, ऑलरेडी ये बन चुका है, मुझे इसको कैंसिल करना है, तो मैंने सीधा यहाँ पे स्पेस बार से जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ब्लू कलर में हो जाता है, या स्पेस बार से हटाते हो तो ये येलो कलर में हो जाता है। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंट्री को तो ब्लू हो गया। कैंसिल आयरन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जैसे तेजस्वी मैम ने बोला कि ई इनवॉइसिंग के साथ आपका ईबे बिल बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ईबे बिल पहले कैंसिल करना जरूरी होता है। आप ईबे बिल कैंसिल नहीं करेंगे तो ई इनवॉइसिंग आपका कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेम शो हो रहा है हेडिंग, टू कैंसिल आयरन इंश्योर दैट ईबे बिल इज कैंसिल करंटली, ईबे बिल इज इन जनरेटेड स्टेट। तो यहाँ पे वो बोलना चाहता है आप ईबे बिल पहले कैंसिल हुआ है कि आपका वो चेक कीजिए, नहीं किया तो पहले ईबे बिल कैंसिल कीजिए, उसके बाद आपका ई इनवॉइसिंग कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे यस किया तो यहाँ पे मेरा व्हीकल वाउचर नंबर्स, वाउचर डेट यहाँ पे शो हो रहा है, आयरन नंबर यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। रीजन फॉर कैंसिलेशन कुछ भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे न्यू रीजन में भी आपका रीजन आप ऐड कर सकते हो। डुप्लीकेट है ये, डेटा एंट्री मिस्टेक्स है, ऑर्डर कैंसिल है, अदर्स में भी इसको डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो भी है आप ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो। ऑर्डर कैंसिल मैंने यहाँ पे कैंसिल में डाल दिया। तो मेरा यहाँ पे ईबे बिल पहले कैंसिल करना होगा, उसके बाद ये मेरा इनवॉइसिंग कैंसिल हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, यही चीजें है इनवॉइसिंग में। आपका समझो ईबे बिल या इनवॉइसिंग भी आपका नहीं बन रहा है, कुछ एरर्स आ रहे हैं सम, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज में जाके दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं, जैसे सेंड फॉर इनवॉइसिंग, सेंड फॉर ईबे बिल। तो जैसे हमने देखा अभी इनवॉइसिंग का सेम एज आपको ईबे बिल का है। ईबे बिल यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्टर में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी है आपका पीरियड सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले। जो भी मेरे ईबे बिल बन चुके हैं यहाँ पे मुझे ईबे बिल जनरेटेड रिपोर्ट में दिखा रही है। कुछ मेरे रिजेक्ट हुए किस रीजन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने एंटर किया, द डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड गिवन इज टू हाई। जो मैंने पिन कोड डाला है और मैंने जो किलोमीटर्स में मेरा डिस्टेंस डाला है वो पिन कोड के हिसाब से बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पिन कोड के हिसाब से जो भी है आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो आपका ईबे बिल जनरेट हो जाएगा। तो जो रीजन से आपका ईबे बिल या इनवॉइसिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है उसको आपको रेक्टिफाई करना है, उसके बाद आपका ईबे बिल या इनवॉइसिंग जनरेट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इनवॉइसिंग नॉट प्रोवाइडेड, तो ये भी आपको जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। तो यही प्रोसेस है इनवॉइसिंग का और ईबे बिल का। इट्स डन फ्रॉम माय साइड। दीपा मैम, थैंक यू। Thank you, Krishna. Well, we completed our today's webinar session. So now let's move ahead with the question and answer session. So request you to please raise your hands or request you to please update your comments or questions in the comment box such that we can just help you out with the solution. As I already said, today we don't have the resource person. So like an overview will not be given by any like person today. So if you have any doubts or any questions, request you to please raise it up. We will help you out to understand the concept. So like Sampada, can you please give privacy, check out the privacy to Mr. Jash? Okay, Mr. Jash, I have given you the access. Request you to please unmute yourself and you can raise up your question. Mr. Jash, request you to unmute yourself. Yes, please. Ma'am, can you show me to make an e-invoice in Tele ERP, Tele Prime? Okay, how to make a e-invoice, you mean to say, right? Yeah. All right. So, Mr. Jash, if you really wanted to see specifically how to make a e-invoice, request you to please do connect us. We will have a special session for you. We will show you how can you make a e-invoice bill. All right. Sorry, I didn't get you. Request you to please connect us. We will specifically show you how to make the bill.
Okay, Okay, because no it issue. will consume little time wherein we do have multiple clients here. So specifically, we will have a special session for you. All right. So request Okay, you to okay. please connect us. The details you can check it out on website as well on the YouTube channel, or you can connect our account manager as well. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. So we have question from Mr. Nikhil. So Mr. Nikhil, you can unmute yourself. I have given you the privacy. Okay, thank you. My question is the procedure for the service sector will remain the same? Yes, yes, please. Krishna, are you here? Can you please answer the question? The procedure for the service sector will remain the same, or is there any other process or procedure? So you can, sir, create first ledger. I can also applicable the what services you can create. So sir, No, that's I जो भी understood. The only one thing, नहीं, I understood from your thing. Now मेरा question ये रहेगा कि उसमें transporter details and all that it is not required. तो still वो the tally will ask because Yes, I'm just yes. rendering the service. So कैसे होगा वो? और सर्विस आपको सर अब सर्विस में ही हो तो आपको पहले बात ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर। तो जो भी है सर्विस का आप नहीं, जो भी अगर- लेजर क्रिएट कर रहे हो तो नहीं, उसके अगर हिसाब one second. Yes. If the my tax threshold limit is exceeding, so still e-way bill is not applicable. no sir, ई वे बिल नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट गुड्स ना सर। Okay. यस सर, जो भी लोग इन्वेंटरी यूज करे दैट इज गुड्स, तो यू कैन नॉट नेसेसरी फॉर जनरेट ई वे बिल। Okay. Really, thanks. And I got one more question. When you said कि previously, so can you just put in a chat box your YouTube channel ka, so I can just check the video and I can see the further video. Sure. After session I will connect sir. You can say the जो भी questions आपको हम डिस्कस कर सकते हैं सर। Okay. Thank you. After Thank session you. I will call you. Okay sir. Okay. Thank you. Thank you so much, Mr. Nikhil. And we do have a question from Mr. Kiran. So, Mr. Kiran, you can just unmute yourself. I have given you the privacy. Mr. Kiran, request you to please unmute yourself. It is from Kiran Kotak and Co. So you can please unmute yourself. All right. So we have Mr. Nishant here. So yes, Mr. Nishant, I have given you the privacy. Request you to please unmute yourself and raise your question. Nishant, are you here? Yes. Yes, sir. You can please raise up your question. Madam, that one invoice was prepared. Hello? So your voice is not audible. Can you please speak a little louder? One invoice was prepared Okay. and that party was in UP. And e-invoice portal invoice site in Tally was showing bill to place is UP and ship to place is Mumbai. Can you please correct the same, or that particular person gets to know about the particular thing? What is the thing is actually? Mr. Nishant, so sorry to say this. We are unable to hear you. Can you please update your question in the chat box? Yeah, sure. Please. There is too much of fluctuation in your network. Request you to please check it out. So moving ahead, we have Mr. Fatin. Okay, so I have unmuted you, Mr. Fatin. So request you to please raise your question here. Yes, you can raise your question. Razai Ratna Motors. Good evening, madam. Yes, sir. Yes, please. Madam, while doing the EV bill from the
Prime, actually we got specific errors stating that mandatory details not specified are invalid. While all the mandatory details are actually right, I don't know why still the error was been producing again and again. Can you please elaborate about this error? Sir, can you please connect us, because as you are saying, instead of providing the mandatory details, you are getting an error. So we really wanted to check out. We will take your system and we will make sure that we will take your system through online, and we'll make sure that we will just check out what is wrong, because as of now such kind of complaint we have not received. So we are supposed to check out what is the issue exactly. Is that fine with you? All right. Okay, request you to please raise up your questions if there is any other question. I'm not finding any raised hand here, but still, if you have any doubts or any questions, you can connect us directly. We are here to specifically take a session to you and freeze up your queries. So, Mr. Krishna, do you have anything else to add in the session? नो मैम, थैंक यू सो मच. जिन्होंने अभी तक ERP 9 से प्राइम अपडेट नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप प्राइम में अपडेट हो जाओ. 2.1 में जो भी एडिट लॉक का फीचर्स आ चुका है, जैसे कुछ एडिशनल जैसे ऑडिट लॉक का फीचर्स है. जिन्होंने कुछ एंट्री वगैरह, समझो आपका GST रिटर्न फाइल हो चुका है, उसके बाद भी आपका कुछ एंट्री अल्टर्स वगैरह हो जाता है, तो वो भी आपको वहाँ पे 2.1 में पता चल जाएगा. तो यही चीजें हैं 2.1 में. जल्दी से जल्दी जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, 2.1 में अपडेट कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए. Perfect. So that's it for today's webinar session. As I already said, this video will be uploaded in the YouTube channel. So request you to visit our YouTube channel, go to YouTube channel and type Rajlakshmi World. You can find our YouTube channel and you can check out this video, and as well there are multiple other videos which will be very, very beneficial for you, because that was demanded by the customer itself, and we do have very genuine topics. So request you to please visit and do subscribe our YouTube channel to show or to see all the movements of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Well, so thank you so much, Tejashree and Krishna, for your wonderful presentation and explanation over the questions. And rest, thank you so much to all the spectators here who took your space to understand the topic and who had the patience to listen our presentation as well as the live demo. Thank you so much, and see you soon in the next session with a wonderful topic. The space is open for you to add on the suggestions. So if you have any topic suggestion, request you to connect us through email or chat as well. If your topic is demanded by other customers or the majority is there, then of course your topic will be presented in the next session. So thank you everyone. Take care and stay tuned. See you soon in the next webinar. Take care. Bye-bye.